Hello, everyone. A very warm welcome to all of you in this webinar today. My name is Karamjeet and I'll be your host for this webinar. I'm very thrilled to have you all here for this webinar on tax return preparation and filing using Express ITR software. We all know जैसे कि हम सबको पता है कि we are in the month of July and it is very important for everyone in a tax industry or related to taxation to file their ITRs on time on 31st of July. So here we thought to present you with the ease of filing your tax returns by using Express ITR. So for this we have tried to conduct this webinar so that maximum tax filers can get benefit of Express ITR and file their income tax returns timely. So today in this webinar we will try to explore the ins and outs of this powerful tax preparation software designed to simplify and streamline the tax filing process. What we'll do is I'll try to cover the maximum features in Express ITR and explain you the process how we can file the tax returns quickly, easily, and accurately. Whether you are a seasoned professional or a first time filer, this webinar will equip you with the knowledge and tools you need to navigate the complexities of tax returns with ease. I'll try to get you all the understanding of the software and how you can benefit from preparing and filing your tax returns efficiently from Express ITR. My agenda would be to cover all the features of Express ITR that make tax filing simplifier, such as automated calculations that are very nicely presented in the software, the error detections at the entry level part, and the data import capabilities. Also, I'll while conducting the session, I'll take you to the user-friendly interface of Express ITR. I mean, how accurately or how easily you can input the tax-related information. Rather than input, I would say you will surprised to know that we have tried to put assemble the information from various portals so that manual input is very less. We'll try to understand the process of tax return step by step and how you can choose your how Express ITR chooses your ITR form on behalf of you. यानी कि इसमें you don't have to enter you don't have to mention which ITR form you are using. आपको सिर्फ अपना डेटा एंटर करना है. इफ यू इवन इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाइलर यानी कि आपने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल नहीं किया है या आपने किसी का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो स्टिल यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर बाय जस्ट यू कैन एंटर द इनकम एंड डेटा. कौन सा एक्सप्रेस आईटीआर आपको एप्लीकेबल है दैट विल बी चोजन बाय द सॉफ्टवेयर विद द रीजन. So I think we should start. Before that, I would like to thank you all for joining us in this webinar. Let's make this webinar a very valuable session for all of us involved. So let's get started. शुरू से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम एक्सप्रेस आई टी आर डॉट कॉम का पेज देख सक रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ओपन है. इस एक्सप्रेस आई टी आर डॉट कॉम के पेज पे आपको यहाँ पर लॉगिन का एक बटन दिख रहा होगा. आप लॉगिन के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा जो आप अपना मोबाइल नंबर से जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं. अगर आप हमारे रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं और आप सिर्फ ट्रायल बेसिस पे आप आईटीआर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करके आप फॉर अ ट्रायल बेसिस आप अपने डिटेल्स एंटर करके अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सिलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म टाइप सिलेक्ट करने के बाद आप साइन अप कर सकते हैं. साइन अप करने के बाद आप एक्सप्रेस आईटीआर के फुल्ली फंक्शनल फीचर्स को एज एन ट्रायल यूज़ कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए बिकॉज मेरा साइन इन है सो आई यूज़ अ साइन इन ऑप्शन. सो मैंने अपनी डिटेल्स क्विकली एंटर करके यहाँ पे साइन इन कर लिया है. अब क्योंकि साइन इन करने के बाद सबसे पहला चीज़ जो मुझे करनी होगी वो मेरे पास मेरा क्लाइंट मास्टर क्रिएट करना होगा. क्योंकि हम जुलाई सीजन में खड़े हैं और आई अंडरस्टैंड कि क्लाइंट मास्टर क्रिएट करना एक बहुत बड़ा टास्क है आपको कि क्लाइंट मास्टर्स को क्लाइंट मास्टर का डेटा जिसमें कि एड्रेस मोबाइल नंबर और बहुत सारी डिटेल्स है उसको हम
कैसे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सके ताकि हम अपनी रिटर्न प्रिपरेशन की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। सो इस वर्क को ईज आउट करने के लिए एक्सप्रेस आईटीआर में आपको एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। आप क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट मास्टर को बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल कोई क्लाइंट, एक आधा क्लाइंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप उनका पैन नंबर और इनकम टैक्स का पासवर्ड एंटर करेगा, प्रोसीड करके आपका क्लाइंट जो है वो क्लाइंट मास्टर में ऐड हो जाएगा। बट अगर आपके 500 5,000 या जितने भी क्लाइंट्स हैं, 10,000 अप टू 10,000 तक भी आप क्लाइंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। इन डिटेल पूरा क्लाइंट मास्टर जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो हमारे लास्ट वेबिनार में भी मैंने गो थ्रू करवाया था। अगर आप चाहें तो हमारे लास्ट वेबिनार का लिंक पे क्लिक करके क्लाइंट मास्टर कैसे प्रिपेयर होता है ये चेक कर सकते हैं इन डिटेल। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बल्क इंपोर्ट का ऑप्शन हमने दे रखा है। बल्क इंपोर्ट में आपके पास एक एक्सेल टैम्पलेट होता है जो कि आप डाउनलोड करके उसमें अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जस्ट उनका पैन नंबर, उनका नाम, इनकम टैक्स का पासवर्ड आप फिल कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो मैंडेटरी हैं। बाकी के आप प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दैट इज एन ऑप्शनल फॉर यू, कि आप एंटर ना भी करें तो भी चल जाएगा। सो मैंने अभी के लिए एक फाइल प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखी हुई है जिसमें कि मैंने रैंडमली कुछ 10,000 क्लाइंट्स इनपुट करके रखे हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो 10,000 क्लाइंट्स कितनी जल्दी इम्पोर्ट हो जाते हैं। ये मेरी एक्सेल फाइल है। जेसन और पीडीएफ, जो कि फॉर्म 16 का पार्ट भी होता है पीडीएफ का, उसको भी यूज करके एक्सप्रेस आईटीआर में आप अपना क्लाइंट मास्टर पॉपुलेट करवा सकते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो क्लाइंट का एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका पैन नंबर एंड एक्सेट्रा, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट मास्टर जो है वो उससे पॉपुलेट हो जाएगा। पीडीएफ, जेसन और क्लाइंट मास्टर की जो एक्सेल जो सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट है। तो फिलहाल के लिए मैंने तीनों फाइल सिलेक्ट कर ली और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेल में 9,999 रिकॉर्ड्स थे, ये इंपोर्ट हो चुके हैं। फॉर्म 16 पार्ट बी पीडीएफ मेरी किसी वजह से इंपोर्ट नहीं हुई है, ये हम एक बार चेक कर लेंगे। एंड देन जेसन भी थी, वो मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। सो जैसे ही मैंने डेटा को वाया एक्सेल इंपोर्ट किया, एक बार के लिए मेरा सारा इन क्लाइंट मास्टर्स जो है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से सिंक हो रहे हैं। आप देखो डेटा सिंक इज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। सिंक का मतलब है कि ये कुछ ही मिनट्स में, मतलब कि रादर 1 मिनट या 2 मिनट्स में आपके 10,000 क्लाइंट्स का डेटा भी पोर्टल से सिंक करेगा। अब सिंक में एक्चुअली में होता क्या है, सिंक में आपकी पिछले 5 साल की आईटीआर समरी, यानी कि आपके क्लाइंट ने कौन सा आईटीआर रिटर्न फाइल किया था, उनका एआईएस का डेटा, उनका 26 ईएस का डेटा, उनके लाइक जो आईटीआर समरी है उनका फॉर्म था, तो कौन सा फॉर्म था, उसमें रिफंड था, जो भी उनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप इनकम टैक्स पोर्टल के साथ आपको यहाँ पे विद इन सेकेंड्स मिल जाएगी। आपने देखा कितनी जल्दी बातों बातों में मैंने इंपोर्ट भी कर दिया और ये मेरा डेटा सिंक भी हो गया। सो यहाँ पर दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ क्लाइंट मास्टर। इसके बाद हमने यहाँ पे दो टैब्स दे रखी है, रीसेंट टैब और ऑल टैब। रीसेंट में आपके फर्स्ट 15 क्लाइंट्स, नॉट फर्स्ट एग्जैक्टली, द 15 रीसेंट क्लाइंट्स अपॉन विच यू वर वर्किंग, वो आपको रीसेंट टैब में शो करते हैं। और ऑल में आपके जितने भी क्लाइंट मास्टर है वो सारे शो हो जाते हैं। क्लाइंट मास्टर में आपने यहाँ पे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का भी एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें कि आप स्टेटस वाइज भी क्लाइंट को सॉर्ट कर सकते हैं। आप जैसे एक्सेल को यूज़ करते होंगे तो एक्सेल में जो एक फंक्शन होता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का, बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है। आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कैसा आप डेटा देखना चाहते हैं, आप कोई सर्च करना चाहते हैं डेटा, वो आप यहाँ से फिल्टर्स लगा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट क्लाइंट मास्टर प्रिपरेशन। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन इज रिटर्न रजिस्टर। किसी भी टैक्स प्रैक्टिशनर का सबसे बड़ा एक टास्क और होता है अदर देन गेटिंग योर क्लाइंट्स रिटर्न फाइलिंग ऑन टाइम। सबसे बड़ा टास्क होता है ये जानना कि उनके कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका जिनका रिटर्न प्रिपेयर होके फाइल हो चुका है, कौन से पेंडिंग स्टेज में है, किनका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, एंड सो ऑन। सो इन सब पेन पॉइंट्स को देखते हुए एक्सप्रेस आईटीआर में आपको एक रिटर्न रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा ओवरव्यू ले सकते हैं अपने सारे ही क्लाइंट्स का, कि किस क्लाइंट का मेरा फाइलिंग स्टेटस क्या है। बेसिकली सबसे बेसिक चीज़ की फाइलिंग स्टेटस क्या है, और अगर वो फाइल हो चुका है सपोज, तो किस डेट को फाइल हुआ, एंड उसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी, कौन सा फॉर्म था। तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर फाइल्ड एंड वेरीफाइड वाला फिल्टर लगाकर चेक करना चाहूँ
कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनका मेरा रिटर्न फाइल हुआ है। तो देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट पॉपुलेट हो गई है, इनकी डेट ऑफ फाइलिंग दिख रही है। जैसे ही आप फाइल्ड एंड वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सेकेंडली, आपका आईटीआर फॉर्म कॉपी भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लाइंट की, पर्टिकुलरली इस क्लाइंट की आईटीआर फॉर्म कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप असेसमेंट ईयर वाइज यहाँ से रिटर्न रजिस्टर का व्यू यानी कि डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। अगर आप 21-22 असेसमेंट ईयर का डेटा रिटर्न रजिस्टर चेक करना चाहें, तो आप इस ड्रॉप डाउन की मदद से अपना रिटर्न रजिस्टर का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं असेसमेंट ईयर वाइज। ये रिटर्न रजिस्टर आप एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड हो जाता है, यहाँ से सिंगल क्लिक करने से ये आपका एक्सेल फॉर्मेट में रिटर्न रजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। एक बार ओपन करके भी चेक कर लेते हैं कि दिखता कैसा है। ये मेरा रिटर्न रजिस्टर है, आप देख सकते हो हर तरीके का। मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 क्लाइंट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो सबका मेरे पास एक एक्सेल फॉर्मेट में डेटा प्रिपेयर होके आ चुका है कि इनका क्या पैन है, क्या स्टेटस है, फाइलिंग स्टेटस क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, एंड सो ऑन। इसके बाद हम फिलहाल आ जाते हैं रिटर्न प्रिपरेशन पे। सपोज मैं रिटर्न प्रिपेयर करना चाह रही हूँ मेरे किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट का। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक्सप्रेस आईटीआर में आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपके क्लाइंट को कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। एक्सप्रेस आईटीआर ये काम आपके लिए करता है। आप सिर्फ डेटा इनपुट करिए अपना रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम में, यानी कि अगर सैलरी डेटा है, आपका हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, एंड सो ऑन, जो भी डेटा आपका है वो आप एक बार ही सॉफ्टवेयर में इनपुट करिए। आपका आईटीआर फॉर्म कौन सा जाना चाहिए, बेस्ड अपॉन योर इनपुट सॉफ्टवेयर डिसाइड करके आपको लास्ट में ई फाइलिंग तक लेके जाता है। सो दिस इज द यूएसपी। न्यू पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा टैक्स वेल वर्स्ड नहीं है, जिनको ये नहीं कंफ्यूजन है कि उनको कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए, तो नो वरीज अबाउट दैट। आप सिर्फ अपना डेटा एंटर करिए, एक्सप्रेस आईटीआर ये डिसाइड करके आपको बताएगा और उसका रीजन भी देगा कि आपको ये वाला फॉर्म क्यों एप्लीकेबल है और बाकी के फॉर्म्स हमने रूल आउट क्यों करे हैं। वो हम एक बार लास्ट स्टेप में देखेंगे कि कैसे फाइलिंग तक जाया जा सकता है। अभी के लिए मेरा ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है। मैंने जिस क्लाइंट पे वर्क करना था, मैंने क्लाइंट मास्टर से उन्हें सिलेक्ट कर लिया है और ये मेरा क्लाइंट का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पर आईटीआर समरी आती है। आप देख सकते हैं आईटीआर समरी में आपको यहाँ पर AIS पीडीएफ डाउनलोड, 26 पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सिंगल क्लिक का ऑप्शन है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होकर आपको एक बार में पीडीएफ की कॉपी डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे मिल जाएगी आपको। अगर आपकी स्टेटस फाइल्ड एंड वेरीफाइड है, जैसे कि सपोज मेरे इस केस में असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर फॉर्म की कॉपी जो मीन जो रिटर्न है वो मेरी फाइल्ड है और मैं सिर्फ इसकी आईटीआर फॉर्म की कॉपी निकालना चाह रही हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम फाइल रिटर्न्स में जाते हैं और वहाँ से एक असेसमेंट ईयर की कॉपी डाउनलोड करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यही काम मेरे और 5-6 असेसीज में करना है, तो मुझे हर एक का सेपरेटली लॉग इन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस आईटीआर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना हैसल पेन्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली उस क्लाइंट पे जाइए, उनके आईटीआर समरी में जाइए और आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। सॉफ्टवेयर एक्सप्रेस आईटीआर ने अपने आप से आपको एक लॉगिन करके ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चला स्क्रीन में, और आपका पीडीएफ का फॉर्म जो है सामने आपके यहाँ पे डाउनलोड करके दे दिया है आपको। दिस इज अवर यूएसपी कि आपको कहीं पर भी सॉफ्टवेयर यूज करते हुए इनकम टैक्स पोर्टल पे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना रोके अपना काम करिए, आप सिर्फ डेटा एंटर करिए, फॉर्म कौन सा फाइल करना है वो भी आपको एक्सप्रेस आईटीआर सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करके देगा। ये थी हमारे आईटीआर समरी की बात, जिसमें कि आप पीडीएफ, AIS पीडीएफ, 26 पीडीएफ और आपका जो फाइल्ड कॉपी है रिटर्न फॉर्म की, वो आप यहाँ पे सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये कंपैरेटिव डेटा है, सो दैट आपका कोई ऐसा इनकम है जो आपने लास्ट ईयर के रिटर्न में शो करी थी बट इस साल शो नहीं करी या मिस हो गई है शो करना, वो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव डेटा से समझ में आ जाएगी अगर आपने करंट असेसमेंट ईयर का डेटा भी इनपुट किया है तो। लाइकवाइज साइड में आप ग्राफिकल व्यूज भी दे रखे हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस वेबिनार में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। आप प्रीवियस वेबिनार भी जाकर हमारा एक बार देख सकते हैं।
अब इसमें एक जो बहुत ही अच्छा फीचर है, आपको किसी भी नोटिस या डिमांड आने से बचा सकता है, वो ये है कि आपने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जो भी डेटा इनपुट किया है, स्पेसिफिकली जो टैक्सेस आपने क्रेडिट जो है 26 ईयर्स का क्रेडिट मांगा है, वो आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में और आपके 26 ईयर्स में एक्चुअली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर वहां पर कोई मिसमैच है, जिसको कि हम टैक्स क्रेडिट मिसमैच भी बोलते हैं, जो कि आपका इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिटर्न प्रोसेस होने के बाद पता चलता है, वो चीज एक्सप्रेस आईटीआर में आप पहले ही पता लगा सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग से पहले ही। वो कैसे? आप यहाँ पर क्लिक करिए, आपकी जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, जो आपने टैक्स कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर में बनाई है, जो डेटा उसमें आपने इनपुट किया है टीडीएस का, और जो आपके 26 या एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्सप्रेस आईटीआर वो डेटा को मैच करेगा आपके लिए, और आपको पहले ही इस चीज के बारे में बता देगा कि आप अपने आईटीआर फॉर्म में जो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, वो कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे, या फिर कहीं कम तो नहीं कर रहे। दोनों ही सिनेरियोज आपको यहाँ पे पता लग जाएंगे। अब गिवन केस में मेरा एकदम बराबर है, मीन्स जो मैंने कंप्यूटेशन बनाई है और जो मेरा 26 का एएस है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं डिफरेंस कॉलम में जीरो। लेकिन अगर ये होता है तो आपको यहाँ पे रेड मार्क में हाईलाइट हो जाता है, और आप वहाँ पे प्लीज इसको चेक करिए रिटर्न फाइल करने से पहले। इसके अलावा डैशबोर्ड में, इनफैक्ट स्क्रीन में, आप पूरे सॉफ्टवेयर में जहां पर भी हर एक पेज पे जब भी आप क्लिक करेंगे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ये ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक एक बटन मिलेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको करंट ईयर में अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते तो आपका टैक्सेस कितना बनते, और अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है तो कितना बनता टैक्सेस, ये आपको हर वक्त शो करता रहेगा। आप देखिएगा जैसे जैसे हम डेटा एंट्री करेंगे, ये वैसे वैसे ये अमाउंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, तो आपको रियल टाइम बेसिस पे आपका समरी पता लगेगा कि आपका ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो कंपैरिजन है, वो रियल टाइम बेसिस पे, साथ ही साथ रिटर्न बनाते बनाते साथ ही साथ आपको ये चीज आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रिपेयर में आ जाते हैं। स्टेटस प्रिपेयर पे आने के बाद इसमें सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरे एक्सप्रेस आईटीआर सॉफ्टवेयर में हम कोशिश करेंगे कि हम मैनुअल एंट्री कम करें, यानी कि हमें डेटा पंचिंग बैठ के बहुत कम करनी पड़े, क्योंकि आजकल सारा ही सब कुछ इंटरलिंक्ड है। आपके जितने भी टैक्सेस हैं, जो भी इनकम है, वो सारी एआईएस या 26 एएस में आपके टैक्सेस में सब कुछ अवेलेबल है। तो एक्सप्रेस आईटीआर जब आपका डेटा सिंक करता है, तो वो ऑलरेडी सारा डेटा सिंक कर चुका होता है, आपको सिर्फ डेटा को क्लिक करके सही हेड ऑफ इनकम में पॉपुलेट करना है। जैसे कि अब मैं सैलरी की बात करूं, तो सैलरी में आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में नीचे मुझे एआईएस से इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल रही है कि मेरी कितनी सैलरी है इस पर्टिकुलर केस में। तो मैं यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करके ऑटो फिल का बटन क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं मेरा मैक्सिमम डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुका है। सो मैं सैलरी के केस में, सैलरी जैसी छोटी रिटर्न जिसको शायद आप पंचिंग करते तो बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ पर आप ऑटो फिल यूज करके विद इन मिनट्स आप ये एक्सप्रेस आईटीआर से रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही ऑटो फिल का ऑप्शन है। अगर कोई रेंट इनकम है या कोई आपकी डेटा जो रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी 26 एएस या एआईएस में, वो भी आपको यहाँ दिख जाएगी। आप ऐसे ही उसको ऑटो फिल का ऑप्शन से पॉपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम कैपिटल गेन पे आ जाते हैं। सो कैपिटल गेन में भी सिमिलरली आप देख सकते हो, अगर आपने शेयर्स सिलेक्ट किया है तो एआईएस शेयर्स, यानी कि शेयर्स का डेटा जो आपके पास अवेलेबल होगा आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा। आप ऑटो फिल करके शेयर्स के डेटा पे वर्क कर सकते हो। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी सेम है। तो हर एक स्क्रीन में जो जो आपकी इनकम है और जो जो डेटा आपके एआईएस में अवेलेबल होता है, वो सारा डेटा सॉफ्ट एक्सप्रेस आईटीआर फेच करवा के आपके लिए अवेलेबल करवाता है, ताकि आपको मैनुअली खुद से कुछ ना करना पड़े। आप सिर्फ अपने डेटा को चेक करिए, वेरीफाई करिए और ऑटो फिल पे क्लिक कर दीजिए। ये हुआ एक तरीका। अगर आपको कैपिटल गेन पॉपुलेट करना है, यानी कि डेटा एंट्री कैपिटल गेन की करनी है, तो इसके अलावा एक एक्सेल टेम्पलेट भी दे रखा है एक्सप्रेस आईटीआर में, विच इज़ कि आप इंपोर्ट सीजी डेटा पे क्लिक करिए। यहाँ पर एक टेम्पलेट है, जैसे ही आप क्लिक हियर टू डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं ओपन करके कि टेम्पलेट एक्चुअल में है कैसा। हाँ जी। सो ये दिस इज़ योर टेम्पलेट। आप देख सकते हैं डिफरेंट टैब्स हैं एक्सेल में।
जो कैपिटल एसेट्स हैं उसके हिसाब से, और डिडक्शंस का भी दे रखा है आपको। डिडक्शंस का भी डेटा आप एक्सेल से ही इंपोर्ट कर सकते हैं इनफैक्ट। सो इसी तरीके से मैंने एक ऑलरेडी डेटा बनाकर रखी हुई है फॉर कैपिटल गेन, तो वो भी एक बार हम इंपोर्ट करके देख लेते हैं। देखिए मेरे पास शेयर्स में 125 रिकॉर्ड्स थे और म्यूचुअल फंड्स में भी 125 रिकॉर्ड्स थे। देखिए अब कितनी फास्ट आपको एक्सप्रेस आईटीआर ने डेटा इंपोर्ट करवा दिया। अब ये जो रेड मार्क दिख रहा है, ये दिस इज बिकॉज आपकी सेल डेट यहाँ पे ब्लैंक है। सो एरर्स भी आपके जो डेटा एंट्री लेवल पे ही आपको सॉफ्टवेयर एरर्स हाईलाइट कर देता है कि ये चीज़ आपकी जो है, इसको इट नीड्स अटेंशन, इसको आप करेक्ट कीजिए। ये जो टॉगल बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इस टॉगल बटन पे राइट साइड की तरफ क्लिक करती हूँ तो आपको एरर्स वाले रिकॉर्ड दिखेंगे। अगर लेफ्ट पे क्लिक करती हूँ तो सारे ही रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे। तो ये थी एरर्ड फाइल जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि दिस इज हाउ आप डेटा एंट्री लेवल पे ही अपने डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार डिलीट ऑल करके अनदर फाइल आपको एक बार इंपोर्ट करके शो करती हूँ अगेन। सो यहाँ पे डिलीट ऑल बटन से आप देख सकते हैं मेरी 125 एंट्रीज थी, कितनी फट जल्दी से ये डिलीट हो गई हैं। अब मैं अनदर फाइल है जो मेरी, उसको एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं। इसमें शेयर्स की एंट्री है। सो ये जो आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं, ये एंट्री करेक्ट है, परफेक्ट है डेटा एंट्री बेस के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे ये ग्रीन है। अब अगर मैं इसको टॉगल बटन को राइट साइड की तरफ करूँगी तो मेरे पास सिर्फ एरर रिकॉर्ड शो होंगे। सो इस तरीके से आप डेटा एंट्री लेवल पे ही एक्सप्रेस आईटीआर आपके डेटा को सॉर्ट कर देता है कि आपके डेटा में कोई अगर एंट्री लेवल पे ही मिस्टेक है तो। इसके अलावा सीजी में एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कैपिटल गेन में कि समरी व्यू है। आप अपने शेयर्स आई मीन आप अपने कैपिटल गेन की सेक्शन वाइज, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ट्रिपल वन ए है या नॉन एप्लीकेबल रेट पे है, सो ऐसे आप समरी व्यू से डेटा को चेक कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ शेयर्स का डेटा नहीं, ये पूरा ही डेटा आता है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा शेयर्स में ही डेटा है, इसलिए यहाँ पर आपको समरी व्यू में शेयर्स ही शो हो रहा है। इसके अलावा ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि ये बटन आपको थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर, थ्रू आउट एवरी पेज दिखता रहेगा। उसका रीज़न है कि जैसे जैसे हम इनकम डालते जाएंगे, यहाँ पर जो अमाउंट है या जो टैक्स कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, वो चेंज होती रहेगी। सो अकॉर्डिंगली अब मेरा कैपिटल गेन का डेटा भी यहाँ ऐड हो गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स कंप्यूटेशन बन रही है, जो कि आपको हमेशा कंपेयर करके बताती रहेगी कि आपका ओल्ड वर्सेस न्यू में टैक्स कंप्यूटेशन कैसा रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अदर सोर्सेज पे। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अदर सोर्सेज एआईएस से डेटा आपका फैच होकर आएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को नीचे ले जाती हूँ, सॉरी, रीस्टोर करके, सो दैट आप देख सकेंगे कैसे ऑटो फिल करने से आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिपॉजिट्स यानी कि एफडीआर का और सेविंग बैंक का डेटा ही अवेलेबल है इनके केस में। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे पॉपुलेट हो जाता है। सो दिस इज हाउ एक्सप्रेस आईटीआर से रिटर्न प्रिपेयर करना देख सकते हैं आप, इतना सिंपल है। अभी तक मैंने कहीं पे भी आप देखिएगा मैनुअल पंचिंग बैठ के खुद से ऐसे कहीं भी टाइप नहीं किया किसी भी डेटा को, मैंने सिर्फ ऑटोफिल या इंपोर्ट का ऑप्शन ही यूज किया है। यहाँ पर भी इंपोर्ट डिविडेंड का हमने एक्सेल टैम्पलेट दे रखा है। अगर आप डिविडेंड का डेटा जो आपके एआईएस में है उसके अलावा है, या आप वो डेटा को ना लेकर आप अपने हिसाब से डेटा एंटर करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल यूज करके भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपकी जो एआईएस में डिविडेंड का डेटा है क्वार्टर वाइज, वो भी एक्सप्रेस आईटीआर आपको ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करके फिल करवा देगा। सिमिलरली एग्जाम्प्ट इनकम में भी ऐसे ही है। एग्जाम्प्ट इनकम में जो एक यूएसपी है वो ये है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर रिसीप्ट 5 लाख के ऊपर ही हैं, तो सिर्फ उस केस में आपसे लैंड, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी डिटेल्स आपको एंटर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन इनेबल होता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर रिसीप्ट जो है वो लेस देन 4 लाख है, तो ये ऑप्शन आपको इनेबल होता ही नहीं है। सो इसमें कहने की बात ये है कि एक्सप्रेस आईटीआर एप्लीकेशन एक इतना इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है कि जैसा आपका डेटा है वैसे ही वो आगे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या रिलेटेड फील्ड्स हैं वो आपकी इनेबल होगी। अदरवाइज आपको अननेसेसरी बहुत सारा डेटा इनपुट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हर एक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं समरी व्यू भी आपको दिखेगा। एग्जाम्प्ट इनकम का आपका टोटल, इस एग्जाम्प्ट इनकम की समरी क्या है वो आप यहाँ पे राइट साइड में समरी व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
सो ऐसे ही आपकी क्लबिंग भी है, क्लबिंग में भी आपका डेटा ऐसा ही रहेगा। सिमिलरली डिडक्शंस, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल असेसी है तो मेरे डिडक्शंस इस तरीके से शो हो रहे हैं। एंड देन समरी व्यू में आप अपने डिडक्शंस को देख सकते हो। अब इसमें मैंने जो हेड्स ऑफ इनकम है उसमें मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन नोइंगली पहले छोड़ दिया था, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में यहाँ पर मैं आपको एक किसी कंपनी असेसी का जिसमें कि शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है और एक इंडिविजुअल असेसी दोनों ही शो करना चाह रहे थे। सो यहाँ पर अभी जो भी मेरा पास ऑलरेडी मैंने डेटा पॉपुलेट करके रखा है, एक बार के लिए मैं वो डिलीट कर देती हूँ, सो दैट आपको शुरू से ये दिखाना चाहेंगे हम कि आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस को ऐड कर कर टैली से या आपका बिजी, जो दोनों मेजरली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ से आप कैसे अपना ट्रायल बैलेंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने डिटेल्स डाल दी। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि इन दोनों के अलावा जो मेरा टैली का ट्रायल बैलेंस है या मेरा बीसी का ट्रायल बैलेंस है वो मैं कैसे इंपोर्ट कर सकती हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ टैली का एक बार अपने पास से ट्रायल बैलेंस रखा हुआ है। सो वो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया एंड आप देखिएगा विद इन सेकेंड्स आपका इतना बड़ा ट्रायल बैलेंस जो है वो इम्पोर्ट हो जाता है। सी, सो बेसिकली वी सपोर्ट जो आपके मेजर अकाउंटिंग आप जिसमें करते हैं वहाँ का डेटा भी कंपैटिबल है। वो डेटा भी आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो सकता है। मल्टी बिजनेसेस हैं, अगर किसी एसएससी के की मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो मल्टीपल अकाउंटिंग करी हुई है, यानी कि मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करके अकाउंटिंग करी हुई है और उनका एक कंसोलिडेटेड व्यू देखना चाहते हैं आप ट्रायल बैलेंस का, तो वो भी अवेलेबल है। आप कहीं यहाँ पे ऐड बिजनेस कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप दोबारा से वही वाला ट्रायल बैलेंस एक बार इंपोर्ट कर लेती हूँ, सो दैट हम सिर्फ एक बार कंसोलिडेटेड का व्यू कैसा है वो एक बार देख सकें। यहाँ पर मेरे देखिए दो बिजनेस कार्ड्स हैं, दोनों का ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे व्यू कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करूंगी तो बिजनेस 1 बिजनेस 2 और उनका कंसोलिडेटेड अमाउंट यहाँ पे शो होने लग गया। ये बेसिकली बहुत ही अच्छा आपको एक एडवांटेज हो जाता है जब आप किसी भी एक असेसी के मल्टीपल बिजनेसेस को कंसोलिडेट करके उनका प्रॉफिट, उनके एक्सपेंसेस, उनके लोन्स एंड एडवांसेस एंड सो ऑन क्या है वो एक जानना चाह रहे हैं, तो इस केस में आपको ये बेस्ट यूज होता है। इसी तरीके से अगर आप 44 AD का कोई आपका या प्रिजम्पटिव का केस है तो आप प्रिजम्पटिव का केस यहाँ पे चूज करके आ, उसमें भी आप जो है एंटर कर सकते हैं डेटा बहुत इजीली। अब फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर 44 AD से रिलेटेड कुछ इंपोर्ट करने के लिए नहीं है, मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे टर्नओवर और प्रॉफिट डालना चाह रही हूँ, तो मैंने थर्ड कार्ड यहाँ पे 44 AD का ऐड कर लिया है। अब जैसे ही मैं इस कंसोलिडेटेड शेड्यूल बीपी 44 AD वाला जो मेरा ऑप्शन है वो खुल जाता है, ये वाला फॉर्म खुल जाएगा जहां पर कि मैं अपनी डिटेल्स 44 AD से रिलेटेड डाल सकती हूँ। आप देख सकते हो बहुत इजीली ये ऑटोमेटिकली 6% 8% भी कैलकुलेट करेगा, और जो आपका एक्चुअल आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट शो करना चाहेंगे वो भी कैलकुलेट होगा, और फिर हायर ऑफ द अबाउट जैसे कि होता है वो सारी डिटेल्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में चली जाएंगी। उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स भी आपको एक ही पेज के एक ही फॉर्म में शो हो रहे हैं। यू नीड नॉट टू हॉप ऑन डिफरेंट ऑप्शंस, और आप इस तरीके से प्रिजम्पटिव का डेटा जो है वो पॉपुलेट कर सकते हैं। राइट साइड में आप देखिएगा कि आपके बिजनेस रिलेटेड, यानी कि स्पेसिफिकली हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड आपका जो भी डेटा है उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में, ताकि आपको एक आपके पीजीबीपी में डेटा एक्चुअली में है क्या, स्पेसिफाइड बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, आपके स्पेक्यूलेशन में आपने क्या शो करा है, अगर आप को किसी इन फर्म से या एलएलपी से रेम्यूनरेशन आती है तो वो कितनी है, उसमें से एग्जाम्प्ट कितनी हुई है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर आपके कंसोलिडेटेड शेड्यूल बीपी के राइट साइड में एक टेबल में शो हो जाती है। तो इससे आप बहुत अच्छा एक आपको ग्रास्प मिल जाता है कि आपका बीपी के अंदर, यानी कि पीजीबीपी के अंदर क्या डेटा आपका जा रहा है। एंड सिमिलरली ओल्ड एंड न्यू रिजीम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके इसकी टैक्स कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही हैं।
यहाँ पर एक इम्पोर्ट फ्रॉम 3CD का भी बटन दे रखा है, खास करके ये टैक्स ऑडिट क्लाइंट्स के लिए है, या जिनके पास जिनकी आप अलाउेबल या डिसअलाउेबल आइटम्स होती हैं। सो आपको दो बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पर टैक्स ऑडिट में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं अपने 3CD में डेटा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इम्पोर्ट फ्रॉम 3CD बटन प्रेस करना होता है और आपका डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। कंसोलिडेटेड शेड्यूल बीपी का एक्चुअली में लॉजिक ये है कि आपके प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, उसमें उसके बाद जो भी हम ऐड लेस करते हैं बेस्ड अपॉन हमारी जो एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस है, अलाउबल डिसअलाउबल चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से आपका सारा जो डेटा एंट्री है वो कंसोलिडेटेड शेड्यूल बीपी में दी गई है। इसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो जीएसटी डिटेल्स। जीएसटी डिटेल्स में पर्टिकुलर पैन का जितने भी जीएसटी नंबर, जीएसटीएन नंबर्स हैं, उनको आप यहाँ पर ऐड करके उनका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आपके जीएसटी पोर्टल में जो उनका टर्नओवर दिख रहा है, वो आप सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस आईटीआर यहाँ पे फेच करके आपको दे देता है। तो आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन करी हुई है आपके डेटा को ऑटोमेटिकली फेच करने की। मैनुअल एंट्री हमने यहाँ पर भी नहीं की है। सिमिलरली ऑडिट इंफॉर्मेशन में भी आपके ऑडिट एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं। लास्ट इसमें एक चीज़ हम मतलब देखना ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि टैक्स डिटेल्स। अब टैक्स डिटेल्स में अगर हम आ जाएं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपकी 26 AS में अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे हम टैक्सेस क्लेम करते हैं आईटीआर रिटर्न में, वो हम कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ डेटा डिलीट किया है सिर्फ इसलिए टू शो यू द ऑप्शन हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे 26 AS पेड, इस ऑप्शन पे अगर आ जाएं तो दो बटन है, एक अपेंड है, एक ओवरराइट है। अपेंड ओवरराइट से मतलब ये कि ओवरराइट अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो डेटा आपने ऐड किया हुआ है वो ओवरराइट होके जो डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है उससे रिप्लेस हो जाएगा। अपेंड का मतलब ये है कि वो डेटा भी रहेगा प्लस उसके ऊपर ये डेटा और ऐड ऑन हो जाएगा। सो हम ओवरराइट पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ ओवरराइट पे क्लिक किया, ये मैंने डिटेल्स जो डिलीट करी थी वो भी आ गई और जो पहले से थी वो रिप्लेस होके दोबारा से आपको शो होने लग गई हैं। यहाँ पे पूरे सॉफ्टवेयर में जो भी कोई एरर होता है या कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन वो रेड कलर के हाईलाइट में शो होती है। अब यहाँ पे आपको हेड ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा है। ये डेटा एआईज भी नहीं देता, तो ये एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका हेड ऑफ इनकम क्या है। और यहाँ पे भी आप ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम पे आ सकते हैं। इसमें मैंने जैसे शुरुआत में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि आप शुरू से ही आईटीआर फॉर्म नहीं चूज करने का ऑप्शन हमने नहीं दिया हुआ है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि कई बारी आप पूरा डेटा फिल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर आईटीआर फॉर्म, फिर पता लगता है ये ऑप्शन तो इस आईटीआर फॉर्म में ले ही नहीं सकते, फिर आप दूसरा फॉर्म लेते हो, फिर उसमें दोबारा से डेटा एंट्री करते हो। सो इसीलिए ये तरीका जो है, ये फ्लो हमने नहीं रखा है। इसमें फ्लो ये रखा हुआ है कि आप सिर्फ अपने इनकम का डेटा डालिए, आईटीआर फॉर्म कौन सा जनरेट होना चाहिए बेस्ड अपॉन योर इनकम, वो एक्सप्रेस आईटीआर आपको बताएगा। अब जो भी मैंने डेटा एंट्री करी है, हम ई फाइलिंग पे एक बार के लिए क्लिक कर लेते हैं। ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना हमारे आईटीआर में, वो सारी यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको यहाँ पर आपने बता दिया रिव्यू एंड ई फाइलिंग पे कि आईटीआर 3 चूज किया है हमने, और आईटीआर 3 एक्सप्रेस आईटीआर ने क्यों चूज किया, एक बार तो उसका रीजन, और आईटीआर 2 को क्यों रूल आउट किया उसका रीजन है। सो यहाँ पे आपको रीजन भी पता लग जाता है। और अगेन ये वही डिफरेंस समरी है जो हमें फर्स्ट डैशबोर्ड पे शो हुई थी, जो आपको किसी भी डिमांड नोटिस से बचा सकती है। जो आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में टैक्सेस क्लेम कर रहे हैं या और जो आपके 26 AS या एआई में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो वो हम आपको शुरुआत में भी बताते हैं, आपके लास्ट में भी रिटर्न फाइलिंग से पहले यहाँ पे आपको इसी स्क्रीन पे शो हो जाता है। सो ये सारी मेरे रिटर्न में मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स यानी कि एरर्स हैं, बेसिकली कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे सैलरी में से एम्प्लॉयर की सिटी, एड्रेस, स्टेट, राइट, और टैन नंबर्स सही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आप अपनी जेसन को रिव्यू कर सकते हैं और फाइलिंग कर सकते हैं। अब इसमें एरर्स के अलावा मुझे वार्निंग्स भी चेक करने थे,
तो वार्निंग्स में इन्होंने बताया कि करंट ईयर एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर 10I इज मिसिंग। फॉर्म 10I आप सब जानते ही होंगे कि वो होता है जिसमें मैं हम अपना ऑप्शन एक्सरसाइज या विड्रॉ करते हैं फॉर न्यू और ओल्ड रिजीम। अब इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ ये भी है कि एक्सप्रेस आईटीआर में आपको फॉर्म 10I अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी को पता है कि हम जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसके पहले आईटीआर 10I फॉर्म को फिलअप करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ये जो डिटेल्स है ना, डेट की और एक्नॉलेजमेंट नंबर की, ये रिटर्न में मेंशन करनी ज़रूरी होती हैं। सो एक्सप्रेस आईटीआर यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि जहाँ पे भी एप्लीकेबल है आपका फॉर्म 10I फिल करना, एक्सप्रेस आईटीआर ऑटोमेटिकली रिटर्न फाइल करने से पहले आपका 10I खुद फाइल करेगा, और उसकी जो डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा उसे खुद फेच करके रिटर्न में पॉपुलेट करेगा और फिर आपकी रिटर्न को फाइल करेगा। सो यहाँ से आप जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से प्रोसीड फॉर ई फाइलिंग का बटन इनेबल हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब आपका यहाँ पे कोई एरर्स ना हो। अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरर्स हैं, इसलिए ये बटन इनेबल नहीं हुआ और प्रोसीड फॉर ई फाइलिंग भी नहीं हो रहा। इसके बाद हम लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो एक किसी भी रिटर्न प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होती है, कि आपकी टैक्स कंप्यूटेशन क्या है, यानी कि आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ये हमारी कंप्यूटेशन है, जहाँ पे फेस ऑफ इनकम कंप्यूटेशन पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा हर एक हेड में क्या डिटेल्स हैं, मतलब ये डिटेल्ड कंप्यूटेशन है। आपकी 17(1) परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सबका एक प्रॉपर बाइफिकेशन दिया हुआ है कि आपकी इनकम क्या है, और उसको आउटर मोस्ट कॉलम, आउटर कॉलम एंड इनर कॉलम में अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ है, सो दैट आपको अलग से आईटीआर फॉर्म रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपकी कंप्यूटेशन क्योंकि इतनी डिटेल्ड है। अब इसमें एक बहुत अच्छा फीचर जो एड ऑन है वो ये है कि हमने कंप्यूटेशन के एनेक्शर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। एनेक्शर्स मीन्स व्हाट, बेसिकली आपकी कंप्यूटेशन में यहाँ पर ऊपर तो इनकम का ही डेटा है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ शो हो रहा है कि आपकी कैपिटल गेन की इतनी इनकम है। यहाँ आपके फॉर एग्जांपल 234C जिस केस में एप्लीकेबल होता है उसमें इतने ही कैलकुलेशन, इतना 234C का इंटरेस्ट बन रहा है। बट हमेशा एक क्यूरोसिटी या एक कंफर्मेशन होती है कि ये कैलकुलेशन कैसे आ रही है। सो वो कैसे आ रही है वो हम एनेक्चर्स में शो कर देते हैं। अब जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका, ये देखिए, ये इतना ब्यूटीफुली आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यहाँ पे एनेक्चर मिला हुआ है जिसमें कि सारी डिटेल्स है आपकी, ये आपको आपकी कंप्यूटेशन के साथ मिलता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको एक इन डिटेल आपकी कंप्यूटेशन रख सकता है। आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए इसको डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट करके अपनी फाइल्स में भी सेव रख सकते हैं। सो ये क्योंकि मेरे इन क्लाइंट में स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल गेन या 112A का डेटा है, जिन क्लाइंट्स में बहुत सारा डेटा होता है, लाइक सारी ही ऑलमोस्ट हेड्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ पे और भी इनेक्शंस होते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साइन अप करें ट्रायल पीरियड में और अपना डेटा प्रिपेयर करके आप एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से एक्सप्रेस आईटीआर में आप बहुत अच्छे से फाइलिंग, बहुत एक्सप्रेसली, मतलब बहुत फास्ट तरीके से फाइलिंग भी कर सकते हो अपने रिटर्न्स की। प्लस आपको जो ईज़ है कि आप बीइंग अ क्लाउड सॉफ्टवेयर, आप इसको कहीं से बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं। आप घर है, ऑफिस है, बिकॉज ये जुलाई सीजन है और पर्सनली मैंने भी बहुत रात तक ऑफिस में वर्क किया है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न प्रेशर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं या हमें घर से ही काम करना है। सो बीइंग अ क्लाउड बेस्ड आपकी एक जो डिपेंडेंसी होती है कि आप ऑफिस या पर्टिकुलर प्लेस में जाके ही काम करना है, वो भी नहीं रहती। आप इसको कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये वेबिनार आपका बहुत फ्रूट यूजफुल रहा होगा, वैल्यूबल रहा हो आपके लिए, सो दैट एक्सप्रेस आईटीआर को यूज़ करके आप अपनी रिटर्न को बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट, क्विकली, एक्सप्रेसिव तरीके से कैसे फाइल कर सकते हैं। बाय एक्सप्रेस आई मीन फास्ट। सो आप कैसे उसको फाइल कर सकते हैं, आई होप ये क्लेरिफाई हुआ होगा। हम ऐसे ही वेबिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस में और आते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप अपडेटेड रहें, जो भी अपडेशंस आती हैं रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर वो हम अपने इस चैनल पे प्रेजेंट करते रहेंगे। सो आई रियली थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस for this webinar and making this session a very valuable one. Thank you everyone for this session.